A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a last topic of class 4 statement of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, approximately in the last 10 to 12 days, we discussed the last chapter of part B, that is a cash flow statement. So now we are discussing a last adjustment of cash flow statement, that is a proposed dividend. You know very well what is proposed dividend. Proposed dividend is the dividend which are proposed by the board of directors in annual general meeting. And you know very well proposed dividend will be declared by the board of directors after the calculation of the profit. बिकॉज कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पहले से कंपनी के प्रॉफिट के बारे में एक एक्सपेक्टेशन हो सकती है, एक स्टिमेशन हो सकती है, लेकिन उसका पेमेंट हमेशा कब होगा? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अप्रोक्सीमेटली बैलेंस शीट बनने के बाद, क्योंकि कंपनी प्रपोज डिविडेंड जनरली कब देती है? क्या बनने के बाद? प्रपोज बैलेंस शीट बनने के बाद. सो दैट्स वाई करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड होता है वो नेक्स्ट ईयर पे होता है, और नेक्स्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड जो होता है उसके बाद वाले ईयर. सपोज 2019 का प्रपोज डिविडेंड है तो वो 2020 में पे होगा, और 20 का प्रपोज डिविडेंड 2021 में होगा. दैट्स वाई प्रपोज डिविडेंड विल बी टेकन एज अ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी. कॉन्टीजेंट लायबिलिटी मतलब दोज लायबिलिटी विच आर नॉट ड्यू इन द प्रेजेंट ईयर. वो लायबिलिटी जो करंट ईयर में आपको नहीं पे करनी है, उसे नेक्स्ट ईयर में पे करनी पड़ सकती है. सो इट विल बी नोन एज अ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी. दैट्स वाई कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो कॉन्टिनेंट लायबिलिटी दैट इज अ प्रपोज डिविडेंड का जो एडजस्टमेंट होता है उसमें हम प्रीवियस ईयर की वैल्यू को कंसीडर करते हैं, करंट ईयर की वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं. सो सिंपल. यानी कि इफ इन एनी क्वेश्चन देयर आर basically two balances of proposed dividend is given as a contingent liability, so in this situation we have to focus on the next previous year proposed dividend amount into the cash flow statement. और current year की proposed dividend की amount को we totally ignored it. हमें current year की proposed dividend की value को totally ignore करना पड़ेगा. I hope it is clear for you. So let's we take the one numerical problem related to the cash flow statement which include the proposed dividend adjustment. Okay, so let's we discuss it. So as you can see that the question number 31 on your screen, the question is prepare a cash flow statement from the following balance sheet. This is a balance sheet given on your screen, as well as this question will be was forward in the WhatsApp group. That is equity and liability shareholder fund 6 lakh 5 lakh. इसमें current year का first column है और previous year का last column है, यानी 2018 is the current year whereas the 2017 is the previous year. Reserve and surplus 3 lakh 1 lakh 80,000. Non-current liability long term borrowing 8% डिबेंचर. देखो यहाँ पर क्लियरली दिया है 8% डिबेंचर, इसका मतलब इंटरेस्ट आपको 8% देना पड़ेगा डिबेंचर्स पे. वैल्यू क्या है? 30,000 60,000. नेक्स्ट करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरिंग कैश क्रेडिट. शॉर्ट टर्म बोरिंग का एग्जांपल क्या दिया है? कैश क्रेडिट. एंड यू नो वेरी वेल कैश क्रेडिट इज जस्ट लाइक अ बैंक ओवरड्राफ्ट. आपने कैश क्रेडिट कितना लिया है? 50,000 and 30,000. Next one is a trade payable 1,90,000 and 1,80,000. and short term provision में consider किया गया है that is a tax. Tax is a short term provision, so उसको हम current liability में include नहीं करते हैं. 40,000 and 60,000. Assets, fixed assets में tangible and intangible. Tangible is a 5 lakh 3 lakh. Intangible is a patents. Clearly says that 1,70,000 and 1,80,000. यानी previous year में था 180, current year में हो गया 170. So आपने patents को write off कर दिया. Next, current assets में current investment. You know very well current investment is a marketable security, so उसको हम लोग current asset में include नहीं करते हैं. इसको हम लोग क्या कहते हैं? Cash in cash equivalents. Inventories, trade receivable and cash and cash equivalents. And the notes to account are as follows. In this question there are basically three notes are given, and I hope you have a question. Adjustment are given in the question are as follows. The first is depreciation provided on assets tangible 50,000. depreciation कितना charge हुआ? 50,000 rupees. And interest paid on long term borrowing 40,000. clearly बता दिया है
इंटरेस्ट आपने पे किया 40,000, अगर नहीं बताता तो क्या करता सर, तब आप यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बट यहाँ क्लियरली बता दिया कि आपने इंटरेस्ट कितना पे किया 40,000, तो कोई डाउट नहीं है आपको। नेक्स्ट, द proposed dividend for the year ending 31st March 2017 was rupees 15,000 and for the year ending 31st March 2018 was 20,000। यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि proposed dividend, यू नो वेरी वेल इट इज अ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी तो बैलेंस शीट में शो होती नहीं है, ये जब भी शो होगी बैलेंस शीट के बाहर शो होगी एज ऑफ नोट्स टू अकाउंट या तो एज एडजस्टमेंट। और प्रपोज डिविडेंड का प्रीवियस ईयर का वैल्यू कितना है 15,000, करंट ईयर की वैल्यू कितनी है 20,000। तो मैंने आपको बताया था कि प्रपोज डिविडेंड में जो प्रीवियस ईयर की वैल्यू है उसको ही हम कंसीडर करते हैं, करंट ईयर की वैल्यू को इग्नोर करते हैं। तो ये जो 15,000 है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, कहां कहां कंसीडर करेंगे, फर्स्ट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ऐड करेंगे एंड प्रपोज डिविडेंड फर्दरली डिडक्टेड फ्रॉम द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वहां से माइनस करें। सो लेट्स बी मूव टू द सॉल्यूशन, हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो एज यू नो वेरी वेल इन दिस क्वेश्चन जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट जो है वो क्लियरली नहीं दी। तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट में प्रॉफिट न दी, जैसे इस क्वेश्चन को मैंने पूरी तरह से देखा तो मुझे ये फील हुआ कि ये क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत क्या है कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट का क्लियर ऑब्जर्वेशन नहीं है कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट कहां से ढूंढे, क्योंकि यू नो वेरी वेल जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो यू नो वेरी वेल हमें क्या चाहिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू calculate the cash flow from operating activity, thereafter investing and thereafter financing। तो ऑपरेटिंग के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कहां से मिलेगा सर, प्रॉफिट कहां से मिलेगा, थिंक अबाउट इट। प्रॉफिट कहां रहता है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में प्रॉफिट रहता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो जो रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू है उसी को हम लोग प्रॉफिट एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। जब प्रॉफिट नहीं दिया रहता तो सिचुएशन में हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस की जो वैल्यू होती है उसी को हम लोग प्रॉफिट एज्यूम कर लेते हैं। और अगर नहीं भी एज्यूम करते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, उस सिचुएशन में हमें रिजर्व पहले था आपका 180, अब हो गया 3 लाख। सो अगर आप इस पॉइंट पे भी ध्यान दो तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रांसफर टू रिजर्व मैंने आपको क्लियरली बताया था, देखो ध्यान से समझना, नोट नंबर 1 में, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। मैंने आपको समझाया था एक चीज कि सर जब भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमें कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले चाहिए होता है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, बट इस क्वेश्चन में प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है ही नहीं। उसमें ऐड करते हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, फिर ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, और उसमें क्या ऐड करते हैं, वी ऐड द डिविडेंड पेड। ये 3 चीजें तो आपको याद रखनी। तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं है, रिजर्व इज गिवन, तो अगर आप उसको रिजर्व भी मानोगे तो भी आंसर उतना ही आने वाला है, प्रॉफिट मानोगे तो भी उतना ही आने वाला है। तो आपके ऊपर है, आप जो भी मान लो। अगर हम इसमें देखें तो रिजर्व एंड सरप्लस पहले कितना था 180, अब कितना हो गया 3 लाख। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपके पास प्रॉफिट कितनी हो गई 120। अगर आप इसको रिजर्व भी मानते तो भी 120 है, तब उस केस में आपको प्रॉफिट को 0 मानना पड़ता बेसिकली। तो योर प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 1,20,000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 0, बिकॉज हमने रिजर्व के बीच का जो चेंज हुआ है इस क्वेश्चन में उसको हम लोगों ने क्या मान लिया है, प्रॉफिट मान लिया, ठीक है। अब बहुत ज्यादा अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो सिंपल से मान लो कि जनरल रिजर्व जो है उसमें जो चेंज हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस में जो चेंज हुआ है वही मैंने प्रॉफिट माना। पहले 180 था, अब हो गया 3 लाख, सो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट आपकी कितनी हो गई 120। प्रोविजन फॉर टैक्स एंड डिविडेंड मेड। अब इस क्वेश्चन में देखो प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए बोला है नीचे एडजस्टमेंट करंट लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन टैक्स 140 एंड 60, करंट ईयर 40, प्रीवियस ईयर 60, और नीचे एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं बोला है। क्वेश्चन में नहीं बोला है कि हमने पेड कितना किया और मेड कितना किया।
पेड बोला होता तो मेड निकालते, मेड दिया होता तो पेड निकालते, बट इस क्वेश्चन में ना पेड दिया है ना मेड दिया, बस दो वैल्यू दी है शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स की। करंट ईयर की दी है 40,000, प्रीवियस ईयर की दी है 60,000। तो कंफ्यूज हो जाओगे सर क्या है ये, कैसा मजाक है क्वेश्चन के साथ। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक वैल्यू टैक्स की दी हो तो वही मेड होती है, वही पेड होती है। कान खोल के सुन लो सब लोग। इफ इन एनी क्वेश्चन when tax value is given at single time, means सिर्फ एक वैल्यू दी है 40,000 रुपीज इनकम टैक्स, so this value will be taken as a made as well as a paid। दो वैल्यू दी है प्रीवियस ईयर करंट ईयर, तो याद है मैंने बताया था करंट ईयर मेड, प्रीवियस ईयर पेड। लिसन केयरफुली, करंट ईयर की मेड होती है और प्रीवियस ईयर की पेड होती है, क्योंकि इनकम टैक्स भी हम एडवांस में नहीं पे करते। इनकम टैक्स भी प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स इस साल पे करते और करंट ईयर का इनकम टैक्स नेक्स्ट ईयर पे करते। दैट्स व्हाई प्रीवियस ईयर का पेड, करंट ईयर का मेड। तो अब आप खुद देख लो, दो वैल्यू दी है प्रोविजन फॉर टैक्स की, प्रीवियस ईयर 60,000, करंट ईयर 40,000। तो आपको यहां क्या लेना है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड लेना है। तो करंट ईयर का क्या होता है, मेड होता है। तो अगर जब सिर्फ दो वैल्यू दी हो तो सिर्फ करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स कंसीडर करेंगे, एंड करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है आपका 40,000। एज वेल एज डिविडेंड पेड, यहां डिविडेंड नहीं है, यहां क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड दिया है, और प्रपोज डिविडेंड के केस में यू नो वेरी वेल हम करंट ईयर की वैल्यू को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो प्रपोज डिविडेंड का सिर्फ कौन सी वैल्यू ली जाएगी, प्रीवियस ईयर, हर जगह ली जाएगी। यहां पे भी ऐड की जाएगी प्रीवियस ईयर की वैल्यू, और वहां से माइनस की जाएगी, कहां से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस की जाएगी। ओके, सो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड कितना है, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड 15,000, उसको ऐड कर दो, और कुछ माइनस माइनस तो हमको नहीं लगता है कुछ करना है। सो दिस वैल्यू विल बी 160, 175 इज योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। यस सर, वर्किंग नोट नंबर 1 क्लियर हो गया। सो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक। सो वी राइट डाउन कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। So we take the first value related to the operating activity, that is profit before tax and extraordinary item 1,70,000. Net profit before tax and extraordinary items, that is 1,75,000. अब इसमें ऐड क्या करते हैं, फॉर्मेट तो मुझे लगता है आपको लर्न हो गया होगा। ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग का सबसे बड़ा एग्जांपल होता है वो है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन तो क्वेश्चन में क्लियरली दिया है, नोट नंबर 1। डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया है टेंजिबल एसेट्स पे 50,000, सो डेप्रिसिएशन कितना हो गया 50,000। एंड यू नो वेरी वेल एमोर्टाइजेशन भी है, पेटेंट्स, इंटेंजिबल एसेट्स है ना, पेटेंट्स एसेट साइड में देखो, उसमें देखो प्रीवियस ईयर वैल्यू कितनी थी 180, करंट ईयर वैल्यू कितनी होगी 170। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपके 10,000 के जो पेटेंट्स थे वो कम हो गए। सो पेटेंट्स को आपने राइट ऑफ कितना कर दिया, पेटेंट्स रिटेन ऑफ कितने हो गए 10,000। और कोई वैल्यू दिख रही है आपको, ध्यान से देखो। यस सर, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 इज इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, आपने इंटरेस्ट पे किया। सो इंटरेस्ट को भी हम लोग क्या लेंगे एज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑन डिबेंचर। कितना आपने इंटरेस्ट पे किया है, दैट इज 40,000। सो आप इसको ऐड कर दो, 50, 60, 1 लाख। सो दिस इज 2,75,000 व्हाट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। निकल आया। उसके बाद क्या करते हैं सर, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करते हैं। तो करंट लायबिलिटी में क्या क्या है सर, तीन चीजें दी हैं करंट लायबिलिटी, कैश क्रेडिट, ट्रेड पेबल
एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो मैंने इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बताया था, कैश क्रेडिट इज जस्ट लाइक अ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो कैश क्रेडिट क्या हो रहा है देख लो, पहले 30 था अब 50 हो गया, तो कैश क्रेडिट आपकी कितने से इंक्रीज हो गई, 20,000 से। सो दैट्स व्हाई इट इज इक्वलेंट टू द बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो बैंक से लोन लेने के कई तरीके होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन लेने के कई तरीके होते हैं। पहला होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने 11th में क्लियरली पढ़ा होगा, आपके बिजनेस स्टडीज में स्पेशली इस चीज को पढ़ा होगा कि कैश क्रेडिट के थ्रू भी एक सोर्स होता है शॉर्ट टर्म बोरिंग का। यानी कंपनी शॉर्ट या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्सन अगर बैंक से उसे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए लोन लेना है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन लेना है, तो कैश क्रेडिट के थ्रू भी लोन ले सकती है। तो cash credit is just equivalent to the bank overdraft. That's why it will be not taken as a current liability. It will be taken into the cash flow from financing activity. Okay. So cash credit को consider नहीं करना है. Trade payable, yes. Trade payable आता है. Trade payable is a combination of creditors and creditors and bills payable also. So trade payables में प्रीवियस ईयर वैल्यू 180, नाउ 190, तो इंक्रीज हो गया ट्रेड पेबल 10,000 से, उसको ऐड कर दो। और नेक्स्ट है एसेट साइड में। एसेट साइड में चार आइटम्स हैं, करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो मैंने पहले ही बताया है, आप लोग को खुद समझदार हो आप लोग। करंट इन्वेस्टमेंट नहीं कंसीडर होता, कैश इन कैश इक्विवेलेंट नहीं कंसीडर होता, सिर्फ क्या आएगा, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। तो इन्वेंट्रीज क्या हो रही थी देख लो, प्रीवियस ईयर 140, करंट ईयर 198, तो डिफरेंस कितना हो गया, 58 इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। एंड नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल 50 से 32 यानी डिक्रीज हो रही है 18,000, तो इसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। सो ये आ गया आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो कैश कितना जनरेट हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, 275 में 10 एंड 18, 28 ऐड करना है, माइनस कितना करना है, 58। so your cash generated from operating activities is 2,45,000। और उसके बाद हम लोग लास्ट में क्या माइनस करते हैं, दैट इज इनकम टैक्स पेड। ओके, सो इनकम टैक्स पेड क्या है सर, मेड होता है करंट ईयर का, तो प्रीवियस ईयर का क्या होगा, पेड होगा। तो प्रीवियस ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था, प्रीवियस ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स था 60,000, तो उसमें से टैक्स कितना पे किया होगा, 60,000। सो यू कैन सी दैट मेड ऐड होता है, पेड माइनस होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में दो ही वैल्यू है, तो पेड और मेड निकालने की कोई जरूरत नहीं है। करंट ईयर मेड, प्रीवियस ईयर पेड। फिर से लर्न कर लो, करंट ईयर मेड, प्रीवियस ईयर पेड। So this is your answer of first activity, that is cash flow from operating activity, and the answer is 1,85,000. I hope it is clear for you. So if we are talking about the investing activities, so you know very well, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हमें परचेज एंड सेल का नॉलेज होना जरूरी है। और परचेज एंड सेल्स कहां से मिलता है, फ्रॉम द फिक्स्ड, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल और द नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं, सो आई होप इट इज क्लियर फॉर यू कि जब भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाते हैं तो दो आइटम्स को जरूर देखते हैं, एक फिक्स एसेट्स को और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, है सॉरी सॉरी, पहले 150 था 190 हो गया, तो 40,000 रुपीज का आपने इन्वेस्टमेंट खरीद लिया। इनटेंजिबल एसेट तो राइट ऑफ हुआ था देख लो, तो उसको कंसीडर करना ही नहीं है। टेंजिबल एसेट्स पहले था 3 लाख, अब हो गया 5 लाख, और उस पर डेप्रीशिएशन लगा है 50,000। सो इस केस में आपको परचेज एंड सेल निकालने के लिए फिक्स एसेट्स का एक छोटा सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस भी है और डेप्रीशिएशन भी है। तो फटाक से मैं बना लेता हूं। ओपनिंग बैलेंस इज कितना है फिक्स एसेट्स का, क्लोजिंग कितना है। तो अगर आप देखो तो ओपनिंग फिक्स एसेट्स का है इज 3 लाख, क्लोजिंग है 5 लाख, और ड्यूरिंग द ईयर उस पर डेप्रीशिएशन कितना चार्ज हुआ है, डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ है दैट इज 50,000। डेप्रीशिएशन 50 था,
अब आप इसको इक्वल कर लो, तो आपने परचेस कितने का किया होगा फिक्स एसेट्स, बैलेंस इधर ही आ रहा है, इधर 550 आना चाहिए, इधर भी 550 आना चाहिए, तो बैलेंस आ रहा है 250। ओके, तो आपने कितना परचेस कर दिया फिक्स एसेट्स को, 2 परचेस। तो अगर आपने एकदम क्लियरली अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर रखा है, तो मुझे नहीं लगता है कि कैश फ्लो में आपको इतना प्रॉब्लम होने वाला है। प्रॉब्लम होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो। तो फर्स्ट एक्टिविटी क्लियर है, दूसरी एक्टिविटी इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। So when we are talking about the investing activity, so the first item which are related to the investing activity is purchase of fixed tangible assets. The first one is the purchase of fixed tangible assets, that is amount is 25,000, and आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी परचेज किया है, जैसा मैंने अभी आपको तुरंत बताया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपने परचेस किया है, क्योंकि पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी, 150, नाउ इट्स वैल्यू इज 190। सो आपने ड्यूरिंग द ईयर कितने का इन्वेस्टमेंट परचेस किया, 40,000। एंड यू नो वेरी वेल, जब भी आप परचेस करते हो तो पैसा जाता है। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपने कैश यूज्ड किया है, आपका कैश गया है। सो द सेकेंड विल बी अ कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इतना मुझे नहीं लगता कि इतना क्लियर नहीं है। आप यहाँ कैश फ्लो वर्ड यूज लिखेंगे, यहाँ कैश यूज लिखेंगे, क्योंकि आंसर नेगेटिव है। अब शायद मुझे इस वर्किंग नोट की भी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, मुझे आप लोगों की भी जरूरत है, सबकी जरूरत है। अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं किस एक्टिविटी की, द लास्ट एक्टिविटी इज नंबर थर्ड, इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वी हैव टू see the two things. The first one is non-current liability, that is a long-term borrowing, and number two is share capital. Yes, तो अगर आप क्वेश्चन देखो तो शेयर कैपिटल की वैल्यू पहले कितनी थी, शेयर कैपिटल पहले था 5 लाख का, कितने का हो गया, 6 लाख का। तो आपने शेयर इशू किया ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इशू ऑफ शेयर। कितने का शेयर आपने इशू किया, 5 लाख से हो गया 6 लाख, तो इशू कितने का हुआ, 1 लाख। यस सर। दूसरा कहां देखते हैं सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना था सर, 60, अब कितना हो गया 30, यानी डिबेंचर जो था पहले था 60,000 रुपीज का, नाउ डिबेंचर विल बी 30,000। पहले डिबेंचर कितने का था 60, अब हो गया 30। सो आपने इशू किया कि रिडम्पशन किया, इट इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ 6% डिबेंचर। कितने का डिफरेंस है, 60 से 30, सो आपने 30,000 के डिबेंचर को रिडीम कर दिया। अभी मैं बैलेंस शीट में चल रहा हूं, और बैलेंस शीट का एक और आइटम था जिसको हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंसीडर करना था। आप हमें फटाक से टेक्स्ट के थ्रू बताइए कौन सा ऐसा आइटम था जिसे हमने यहां लेफ्ट कर दिया था करंट लायबिलिटी में। Yes, it is a good correct answer. Cash credit, because cash credit is equivalent to the bank overdraft. Cash credit पहले कितने का था सर, कैश क्रेडिट पहले था 30, अब हो गया 50। इसका मतलब आपने कैश क्रेडिट यूज किया है, कैश क्रेडिट का पेमेंट नहीं किया। कितने का कैश क्रेडिट आपका बढ़ गया, 20,000। तो इसका मतलब आपने लोन ले लिया। शॉर्ट टर्म लोन लेना, जब आपका लायबिलिटी बढ़ता है इसका मतलब आपने लोन लिया, लायबिलिटी कम होता है इसका मतलब आपने लोन को पे कर दिया। वैसे ही जैसे डिवेंचर को कम हो गया तो रिडम्पशन, कैश क्रेडिट बढ़ रहा है तो आपने लोन ले लिया। ये तो हो गई बैलेंस शीट की बात। अब हम लोग आते हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड दो आइटम्स गिवन है। द फर्स्ट आइटम इज इंटरेस्ट पेड, सेकेंड इज अ प्रपोज्ड डिविडेंड। इंटरेस्ट आपने कितना पे किया है, आपने इंटरेस्ट पेड किया है ऑन 6% डिवेंचर, दैट इज 40,000। यस सर, तो इससे पैसा गया होगा। और आपने प्रपोज डिविडेंड पे किया है, मैंने आपको बताया था ना, प्रपोज डिविडेंड सिर्फ प्रीवियस ईयर का कंसिडर करते हैं, करंट ईयर से कोई मतलब नहीं। प्रीवियस ईयर का ही इसमें ऐड हुआ था, और प्रीवियस ईयर का यहां से हम लोग माइनस भी करेंगे। कितने का भैया, 15,000 रुपीज।
सो अब आप एनालाइज करो, 1,20,000 इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो कितना हुआ? 30, 40, 70, 70 and 15, 85, 85 minus 120, so 120 is greater than, that is a that is answer is a cash from, अभी सब कुछ क्लियर है? थोड़ा सा देख लो। शेयर इशू किया, प्रपोज डिविडेंड पे हो गया, इंटरेस्ट पे हो गया, 30, 70, 85, 85 एंड 120, कोई आइटम छूट तो नहीं रहा है? नो सर, नो, ऑल द आइटम्स आर करेक्ट। वो आइटम्स ऐसा नहीं है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमसे लेफ्ट हो रहा हो। सो योर कैश फ्रॉम दिस इज 35,000 प्लस में आएगा आंसर। मैं एक बार चेक कर रहा था कि कोई ऐसा आइटम ना हो जो छूट जाए, इसलिए आप याद रखना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग करने के बाद आप एक बार जरूर रिवाइज कर लेना कि कहीं ऐसा कोई ऐसा आइटम्स तो नहीं है जो हमसे छूट रहा हो। ठीक, तो यहां देखने को पता चल रहा है कि हमारा A पॉइंट 185, B का आंसर -65,000, C का आंसर कितना आया, दैट इज 35,000। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज अ पॉजिटिव, cash flow from investing activity is in negative, whereas the cash flow from financing activity is also in positive। तो हम लोग क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन हम इन तीनों को ऐड करते हैं। ऐड कैसे करते हैं? ऐड करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, सो मुझे लगता है कि मैं इधर का स्पेस यूटिलाइज कर लेता हूं, आपको इधर की क्लियर हो गई हो चीजें। सो यू नो वेरी वेल, आफ्टर दैट 185 and 35 is 2,20,000 minus 65,000, so your answer in positive। तो यानी तीनों एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद जब आप निकालोगे नेट इंक्रीज, आपका क्या आएगा, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट इज A प्लस B प्लस C। तो ये आंसर पॉजिटिव में आएगा, और पॉजिटिव आंसर कितना आएगा आपका, कैलकुलेट कर लो। नेट इंक्रीज इज 35, 185, 220, 220 में 65 माइनस कर दो, so 005, 155, 1,55,000 is your net increase in cash and cash equivalent। yes, okay, फिर उसमें ऐड करते हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगनिंग, बिगनिंग में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसको ऐड करना है। और बिगनिंग में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दो आइटम्स हैं। फर्स्ट आइटम जो है वो है आपका करंट इन्वेस्टमेंट, और सेकेंड आइटम है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो बिगनिंग में आपका करंट इन्वेस्टमेंट कितने का था? 140, कैश था 150, सॉरी ओनली 50, तो 140 एंड 50 ऐड कर लो, तो ये हो गया आपका 190। So your cash and cash equivalent is 0,00594, 3,45,000। ये आपका आंसर होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड। अब इसको चेक कर लो कि सही है कि गलत है। तो जो करंट इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग है, करंट इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग कितना है? 1,08,000, और कैश का क्लोजिंग जो है वो है कितना? 12,000। ये मुझे कुछ डाउट लग रहा है, 130 आ रहा है। This is the mistake is that this is not a 25,000. This is a 2,50,000. So please correct it. This is a 2,50,000, not a 25,000. So that's why this will be a 2,90,000. और जब ये 2,90,000 होगा, so यहां पर कैश नेट इंक्रीज नहीं होगा, नेट डिक्रीज होगा। एक कहावत है, सावधानी है दुर्घटना घटी। देख लो, सब कुछ सही रहते हुए एक वैल्यू अगर गड़बड़ हो गई तो आप परेशान हो जाएंगे। 185, 290 माइनस में एंड 35 माइनस में, तो ये नेट डिक्रीज आएगा, दैट इज -70,000। दिस इज 290 माइनस
I hope it is clear for you. This is 250, so that's why its total is 2,90,000 outflow, 35,000 positive, and 185 is a positive. So 2,20,000 positive, 2,90,000 is negative. So your net decrease in cash equivalent is 70,000. और उसको जब आप ऐड करोगे 1,90,000 में तो क्या आ जाएगा 1,20,000 क्योंकि 70 is a negative and 190 is a positive, तो 190 minus 70 is 120 एंड 120 को अगर प्रूव करना हो तो कैसे कर सकते हो 1,08,000 प्लस 12,000 सो द टोटल ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन एट 1,20,000. So I hope this question is clear for you. Thank you. Thanks a lot.